Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing good and staying safe at your homes. Today what we are going to learn, as you can see on your screen, we are going to study maths today. Let's see what is the day and date today. The day is Monday and the date is 12th April 2021. So let's see what are we going to study today. Yes, we are going to study time that we have been studying since last week. हम last week से time पढ़ रहे हैं ना. अब last week we studied parts of the clock. We studied how to tell the time to the hour. ये हमने last time पढ़ा था. Now today what are we going to learn is, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे कि how to tell the time to the half hour. हाफ आवर का टाइम जो है आज हम सीखेंगे. ठीक है. सो जल्दी से जब पार्ट्स ऑफ क्लॉक रिकॉल करते हैं. तो पार्ट्स ऑफ क्लॉक में आई टोल्ड यू देयर आर 3 पार्ट्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं. देयर आर 2 हैंड्स एंड 1 face. 2 hands and 1 face. One hand is shorter and the second hand, the minute hand, is longer. The shorter hand is called hour hand, right? And the face of the clock has numbers from 1 to 12. ये बात मैंने आपको बताई थी. ठीक है. We have recalled the parts of clock. Now let's recall how to tell the time to the hour. ठीक है. किस तरह से हम जो है वो टाइम बताते हैं. लाइक look at this clock. It has the hour hand on 7. It is pointing to 7 and the minute hand is pointing to 12, the blue one. ठीक है. So अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इस तरह से जब होता है तो वी कॉल इट 7 o'clock. दिस टाइम इज़ 7 o'clock. क्योंकि जब मिनट हैंड 12 पे होता है तो इट मीन्स अ कंप्लीट आवर हैज़ पास्ड. एक पूरा आवर हो चुका है, इसलिए हम उसे कहते हैं 7 o'clock. फाइन. जो शॉर्टर हैंड है, द आवर हैंड है, उस पर जिस नंबर पे वो पॉइंट कर रहा है, वी कॉल दैट नंबर एंड वी से इट इज़ 7 o'clock. नेक्स्ट देखें यहाँ पर. द मिनट हैंड इज़ एट again 12. It is pointing to 12 and the hour hand is pointing to 4. So what are we going to say? It is 4 o'clock. ठीक है. तो जो मिनट हैंड आवर हैंड है, अगर वो किसी नंबर पे होता है और मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 12, तो फिर हम कहते हैं कि वो टाइम हो रहा है. दैट आवर इज़ we can tell the time to that hour. Fine. Now how to tell the time to the half hour. ठीक है. अब हाफ आवर को किस तरह से रीड किया जाता है टाइम को. Let's learn how to tell the time to the half hour. In your primary mathematics, there are 2 children. They both are sleeping. The girl is Priya and the boy is Tom. अब they go to bed. They sleep at different times. अब इन्होंने जो जिस टाइम पर ये सोते हैं, there are the clocks. ठीक है. with both picture, इन दोनों की यहाँ देखिए. ये प्रिया का टाइम है सोने का. एट दिस टाइम शी गोज़ टू बेड एंड दिस टाइम टॉम गोज़ टू बेड. ठीक है. यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइम जो है वो आपको 2 डिफरेंट क्लॉक्स शो कर रही हैं. अब द फर्स्ट वन जो प्रिया का टाइम है, दैट यू कैन रीड ईजीली. ये तो आप आसानी से रीड कर सकते हैं क्योंकि यू हैव learned how to read the time to the hour. आपको आवर तक रीड करना आता है. When the hour hand, the red one, is at 9, is pointing to 9 and the minute hand, the blue one, is pointing to 12, it means it is 9 o'clock. Very nice. अब यहाँ पर है कुछ डिफरेंट. यहाँ पर है कि
hour hand is between 9 and 10 and the minute hand is pointing to 6. As you can see, आपको यहाँ दिख रहा है कि मिनट हैंड जो है वो 6 पर है और आवर हैंड इज़ बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच में है. फाइन. अब हाउ कैन वी लर्न दिस? अब हमें किस तरह से इसको समझना है? लेट्स सी क्या है यहाँ पर. देखिए, पहली चीज़ आई हैव टोल्ड यू, अभी ही मैंने आपको बताया कि जो है वो 9 पर है और वो 12 पे है, तो वी से इट 9 o'clock. बट when the minute hand is pointing to 6 and the hour hand is between 9 and 10, so it has gone past 9. It means कि 9 o'clock से हम आगे आ चुके हैं. 9 o'clock से टाइम आगे जा चुका है. ठीक है, तो 9:30. It means कि 30 minutes have passed. 30 minutes गुज़र चुके हैं, इसलिए we call it 9:30. ठीक है. Let's see some more examples. कुछ और examples देखते हैं. यहाँ देखिए, again the minute hand is pointing to 6 and the hour hand is between 12 and 1. ठीक है, 12 और 1 के बीच में है. तो ऑब्वियसली 1 o'clock तो अभी नहीं हुए हैं, अभी तो 12 o'clock हुए थे और 12 से आगे जो है वो टाइम गुज़र रहा है. तो इट मीन्स कि द 12th hour हैज़ पास्ड. जो 12th hour है वो पास हो चुका है, गुज़र चुका है. और अभी वो कितना गुज़रा है? हाफ ही गुज़रा है. ठीक है ना. लेट्स लुक एट द क्लॉक. ये अभी तक इसका ये हाफ ही गुज़रा है, राइट. तो हम क्या कहेंगे? 12:30. हम क्या कहेंगे? 12:30, क्योंकि 12 गुज़रा है, अभी 1 नहीं बजा है. ठीक है, 1 o'clock नहीं हुआ है. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स. अभी हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए, अगेन द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 6 एंड द आवर हैंड इज़ बिटवीन 2 and 3. अब 2 और 3 के बीच में. सो व्हाट आर वी गोइंग टू टेल? के द टाइम इज़ 2:30, क्योंकि अभी 2 o'clock से टाइम आगे आया है, तो इट इज़ 2:30. इसका मतलब ये होता है कि 30 मिनट्स हो चुके हैं. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि फॉर क्लॉक वी कैन रीड द टेबल ऑफ 5. जब मिनट्स पास हो रहे होते हैं तो 1 मीन्स 5 minutes हैव पास्ड. लेट मी शो यू हाउ कैन यू रीड द क्लॉक. आपको याद होना चाहिए, हमने क्लास में भी पढ़ा है. ठीक है, ये इस तरह से हमने पढ़ा था ना कि ईच नंबर रिप्रेजेंट 5 minutes. जब मिनट हैंड होता है तो हम उसको आवर की तरह रीड नहीं करते हैं. जब आवर हैंड होता है तो हम तो कहते हैं 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. बट when the minute hand is at 1, it means कि 5 minutes गुज़र चुके हैं. When the minute hand is at 2, it means 10 minutes. Like you read the table of 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20. So if the minute hand is pointing to 4, it means 20 minutes have passed. If the minute hand is pointing to 5, it means 25 minutes have passed. So the cycle goes on. 6, it means 30 minutes. 7, it means 35 minutes. When the minute hand is pointing to 8, it means 40 minutes. When the minute hand is pointing to 9, it means 45 minutes. When the minute hand is pointing to 10, it means 50 minutes. And when the minute hand is pointing to 11, it means 55. And when it is at 12, it means 60 minutes. A whole hour, पूरा घंटा जो है, it has passed. तो ये जो है क्लॉक का कॉन्सेप्ट है. तो when it points to 6, it means 30 minutes have passed. 30 minutes गुज़र चुके हैं. तो हाफ पास्ट, 30 मिनट्स को हम क्या कहते हैं? हाफ पास्ट. बिकॉज 60
मिनट्स का आवर है और उसका हाफ 30 मिनट्स, तो इट मीन्स कि हाफ आवर हैज़ पास, तो उसको हम कहते हैं हाफ पास। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो क्लॉक को रीड करने का जो मेथड होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मैंने रिकॉल किया ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अब हमने वो रिकॉल कर लिया। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं, बिकॉज द मोर वी सी द एग्जांपल्स तो मोर इट विल बी ईजियर फॉर अस। जितना हम एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारे लिए ईजी हो जाएगी। आई विल गिव यू द होम टास्क एज वेल, बट लेट्स सी द एग्जांपल्स फर्स्ट। ठीक है, this is again the minute hand is pointing to 6, minute hand is pointing to 6 and hour hand is between 3 or 4. जब hour hand between 3 and 4 है और minute hand is pointing to 6, it means we will tell the time like it is half past 3, कि 3 का हाफ आवर पास हो चुका है। ठीक है, again one more example, the minute hand is pointing to 6 and the hour hand is between 11 and 12, 11 and 12 के बीच में है, तो it is half past 11, half past 11. Fine. ठीक है, आप देखें, there is one more example. Again the minute hand is pointing to 6 and the hour hand is between 4 and 5, so we will say that it is half past 4, half past 4. Fine. And here again the minute hand is pointing to 6 and the hour hand is between 7 and 6, 6 and 7 के बीच में है hour hand, so it means it is half past 6. ठीक है, now अब जब हमने इतनी सारी एग्जांपल्स देख लिए हैं तो आई होप कि अभी आपके लिए आसान होगा। नाउ आई विल गिव यू 2 पेजेस टू कंप्लीट। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल पेजेस है, आई विल शो यू। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 207 एंड 208। फाइन। ओके, यू हैव टू कंप्लीट बोथ पेजेस। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आई एम शोइंग यू द आंसर्स, फिर आप अपने आंसर्स इससे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, दीज आर द आंसर्स, ये आपके आंसर्स हैं। रीड ईच एंड एवरी क्लॉक, हर क्लॉक का टाइम रीड कीजिएगा। ये नहीं कि जो आपने सॉल्व करना है ओनली दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व, सिर्फ 3 क्लॉक सॉल्व करनी है, 3 क्लॉक्स का टाइम लिखना है तो आप उसी को बस पढ़ें, नहीं, सारे टाइम्स जो है सारी क्लॉक्स को रीड करेंगे तो फिर आपको जब अगली दफ़ा टाइम देखेंगे तो आपको फ़ौरन से क्लिक करेगा और आप आसानी से टाइम बता सकते हैं। ओके, दिस इज़ वन मोर पेज, ये भी बहुत आसान है, वही मॉर्निंग और आफ्टरनून का कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए आपने जस्ट यू हैव टू राइट द टाइम। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।